Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture, we will continue chapter number 9 of history, that is the making of regional cultures. This is the lecture number 2 of this chapter. In the previous lecture, we discussed about the regional cultures, we discussed about the different languages, we discussed how the different cultures flourished in our country during the medieval period, which means we studied the origin of different type of cultures which made our country very unique. So in the previous lecture, our main focus was on the language, how the different regional languages led to different regional cultures. Today, in the next part of this chapter, we will be studying about the various temples which lead to the formation of different regional cultures. So, we have already studied the Chera and the evolution of Malayalam. In this, we studied about the Malayalam language, which originated during the medieval period in the 9th century in the southwestern part of the Kerala. This was one of the example of regional language. Now we will be studying the next topic, that is the Jagannath culture, regional traditions. So here we will study about the regional traditions. I told you culture includes so many terms like festivals, languages, traditions, the way of speaking, so many things are included. As we in this chapter we are studying about the regional culture, so we will also study about the regional traditions. So we have the Jagannath culture. An interesting feature of this period was the extended worship of Vishnu, Shiva and different goddesses. The goddess is visualized in different forms in different regions. जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे यूनिक फीचर था मिडिवल पीरियड का वो ये था कि इस टाइम पर डिफरेंट गॉड्स फॉर एग्जांपल विष्णु शिवा की जो वर्शिप थी वो बहुत ज़्यादा थी मीन्स द वर्शिप ऑफ विष्णु एंड शिवा वॉज वेरी मच देयर इन द मिडिवल पीरियड. दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मिडिवल पीरियड. और हर एरिया में हर रीजन में जो गॉडेसेस थे या जो गॉड्स थे उनकी वर्शिप का वे डिफरेंट था. डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स यूज टू वर्शिप द गॉड दैट इज विष्णु एंड शिवा in their own different ways. So, different traditions were there. So, we have been given one example here, that is of Jagannath. Jagannath is just a form of God Vishnu. Now, this temple is at Puri in Odisha, which was earlier known as Orissa. So, Odisha mein at Puri there is a temple which is commonly known as Jagannath temple. वाई जगन्नाथ बिकॉज वहाँ पर लॉर्ड विष्णु की आइडल है और उनकी पूजा की जाती है वर्शिप की जाती है. सो जगन्नाथ इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ विष्णु. द इमेज ऑफ द डीटी इज मेड ऑफ वुड. जो लॉर्ड जगन्नाथ की वहाँ इमेज है जो मूर्ति है दैट इज ऑफ वुड. इट इज मेड बाय द लोकल ट्राइबल्स एंड रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब जो बाकी जगह लॉर्ड विष्णु की इमेजेस हैं और जो जगन्नाथ टेम्पल में पूरी में इमेजेस हैं दैट इज़ मच डिफरेंट. उनकी जो गॉड की इमेज है ना वहाँ के माइंड पीपल के माइंड में जो गॉड की इमेज थी दैट वाज अ बिट डिफरेंट. तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग एक डीटी की इमेज बनाई, एक आइडल बनाई दैट इज़ ऑफ मेड ऑफ वुड. एंड दिस वॉज देयर डिफरेंट ट्रेडिशन देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो उनके लिए गॉड है और जो बाकियों के लिए गॉड विष्णु है दैट इज़ डिफरेंट. इसलिए जो विष्णु गॉड थे उनको उन्होंने नेम क्या दिया, जगन्नाथ. दैट इज वाई इट इज रिटन फॉर्म ऑफ विष्णु. लॉर्ड इज सेम, दे आर ऑल्सो वर्शिपिंग द लॉर्ड विष्णु बट वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में वर्शिप करते थे. उन्होंने जो आइडल बनाई वो डिफरेंट बनाई तो उन्होंने उसको अपना एक नेम दे दिया दैट इज जगन्नाथ. और जो उनका वे था वर्शिप करने का दैट वॉज डिफरेंट विच मीन्स देयर ट्रेडिशन देयर वे ऑफ वर्शिपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द country. In the 12th century, Anantvarman was an important ruler of the Ganga dynasty. अब इसने क्या किया, इसने भी पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ के लिए एक टेम्पल बनवाया. ऑब्वियसली लॉर्ड जगन्नाथ के लिए बिकॉज पुरी में उस एरिया में क्या ट्रेडिशन था, टू वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ. वी आर स्टडिंग रीजनल कल्चर. वहाँ का ये ट्रेडिशन बन गया था दैट दे वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ. तो वहाँ का एक कल्चर था. सो अनंतवर्मन ने भी दैट इज इन 12th सेंचुरी उन्होंने क्या करा, एक लॉर्ड जगन्नाथ के लिए एक और टेम्पल बनवाया. He was an important ruler of Ganga dynasty and he erected a temple of Purushomadas at Puri for Lord Jagannath in 1230. Then King Anang Bhima III
डेडिकेटेड हिज एम्पायर टू लॉर्ड जगन्नाथ। उसके बाद 1230 के बाद नेक्स्ट जब किंग आए, किंग अनंग भीमा 3, इन्होंने अपना जितना भी एम्पायर था, जो भी इनके किंगडम में था, वो सब कुछ लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेट कर दिया और खुद को क्या बोला, गॉड्स डिप्टी। ग्रेजुअली जो टेम्पल था इट बिकेम अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, वो एक तीर्थ स्थान बन गया। एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स इंक्रीज्ड, उसका जो इन्फ्लुएंस था वो इंक्रीज हो गया। उस टेम्पल की अब वैल्यू थी, जब एम्पायर का सब कुछ लॉर्ड जगन्नाथ को दे दिया गया, मीन्स उस टेम्पल के लिए सेक्रीफाइस कर दिया गया, एंड द किंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज गॉड्स डिप्टी, तो जो जगन्नाथ टेम्पल था उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स जितने भी कन्क्वेरर्स थे ओडिशा के, मुगल्स आए थे, आफ्टर दैट मराठास, और लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, दे ऑल जस्ट वांटेड टू कन्क्वेयर दैट एरिया। वो उस एरिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, उस टेम्पल को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, सो दैट वहाँ के जो लोकल पीपल है वो उनके रूल को एक्सेप्ट कर लें। बिकॉज वो टेम्पल वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी, टेम्पल की एक अपनी वैल्यू थी, सोशल पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी टेम्पल की। तो जिसके भी कंट्रोल में वो टेम्पल होता, दैट वाज ऑब्वियस कि वहाँ के जितने भी लोकल पीपल हैं वो उस पर्सन को फॉलो करते। दैट इज़ वाई द मुगल्स, मराठास एंड व्हाटसोएवर कंक्वेरर्स वर देयर एट दैट टाइम, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे ऑल वांटेड टू हैव द कंट्रोल ऑफ दैट टेम्पल. Next is Rajputs. In the 19th century, Rajasthan of today was termed Rajputana. पहले राजस्थान को राजपूतना बोलते थे, and this name was given to Rajasthan by the British. Many people assume that it was an area inhabited only by Rajput. अब लोगों को क्या लगता है कि राजस्थान में सिर्फ जितने भी people हैं they are Rajput, but this is not true. अब simple सा concept है. Suppose if I will say that in India the Hindus are there and in Pakistan the Muslims are there, this assumption is not true, because some of the Muslims are there in our country also and some Hindus are there in Pakistan also. Similarly, the example of Rajasthan, in Rajasthan some people of other communities are also there and some Rajputs are also there in other parts of the country except Rajasthan. तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि राजस्थान में सिर्फ राजपूत हैं. There are many groups who call themselves Rajputs in the northern and central India. Likewise, Rajasthan has many other communities also. But Rajputs give a distinctive identity to the culture of Rajasthan. वहाँ का जो मतलब मैक्सिमम जो पर्सन्स थे वहाँ पर वो राजपूत थे, तो जो उनका सबका कल्चर था वो सेम था और राजस्थान में वही कल्चर फेमस होता गया. वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनल कल्चर. तो जो राजपूत का कल्चर था वो राजस्थान का कल्चर बन गया. दैट इज वाई वी कैन से कि ठीक है वहाँ पर जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है दैट इज ऑफ राजपूत, बट दिस इज नॉट ट्रू कि वहाँ सिर्फ राजपूत हैं. Since the 8th century, most of the Rajasthan was ruled by the Rajput families. These people fought bravely and believed in dying on the battlefield rather than being defeated. जो राजपूत थे ये ना अपनी bravery, valor के लिए बहुत ज़्यादा famous थे. They were very very brave. They were famous for their valor and bravery. And these people believed कि battlefield में मरना ठीक है, they can die, but they will not get defeated. हार नहीं मानेंगे, बेशक मर जाएंगे. So they were very very brave. These people they fought very bravely with their valor. So now we have one example of such ruler, that is Prithviraj Chauhan. You might have heard about him. He was very brave ruler. Many poems and songs of Rajputs have been recorded. Ordinary people are attracted towards the depiction of strong emotions, loyalty, anger, friendship, love, etc. in the poems and songs inspired by the heroes of Rajasthan. Which means कि बहुत सारी poems हैं जो राजपूत्स ने लिखी हैं या सिंग की हैं, songs हैं, and ये सारे जो हैं these are the inspirations for all of us which is given to us by the heroes of Rajasthan, जिसमें बहुत strong emotions को depict किया गया है. For example, friendship, love, loyalty, etc. Likewise, at times women were the cause of conflict. कई बार राजस्थान में जो कन्फ्लिक्ट हुआ दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वुमेन ऑल्सो. वुमेन हैव बीन गिवन हीरोइक इमेज सिंस दे कमिटेड सती और सेल्फ इमोलेशन आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड. पहले वो वुमेन जो थी वो वहाँ पर क्या करती थी, सती बन जाती थी. मीन्स अगर उनके हस्बैंड की डेथ होती है तो उस जिस
फायर में उस हस्बैंड को, जो डेड बॉडी थी हस्बैंड की, उसको जलाया जाता था, सेम फायर में जो वाइफ होती थी उस हस्बैंड की, उस मैन की जो वाइफ थी, वो सेम फायर में खुद को जला लेती थी, एंड फ्रॉम दैट शी केम टू नोन एज सती। सो जो लेडीज सती बनती थी वो उनके एक हीरोइक इमेज होती थी, वो फेमस हो जाती थी। सो दिस वॉज द कल्चर ऑफ राजस्थान।